So the questions are, what is HAARP? Why was it made? How does it work? And who owns HAARP? HAARP यानी हाई फ्रिक्वेंसी एक्टिव ऑरोरा रिसर्च प्रोग्राम बज़ाहिर एक तहकीकाती मंसूबा था जो कि अमेरिकन एयरफोर्स की निगरानी में 1993 के अंदर दुनिया के सामने आया। अमेरिकन एयरफोर्स की ज़ेरे निगरानी इस प्रोग्राम के बारे में लोगों को यानी अमेरिकन अवाम को यह बताया गया कि इसके ज़रिए ज़मीन की सतह से 60 किलोमीटर दूर ऊपर आयोनोस्फीयर को स्टडी करना था। ये सतह ज़मीन से तकरीबन 60 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच में ये आयोनोस्फीयर्स है और ये आयोनोस्फीयर्स इसकी स्टडी करना ही अमेरिकन एयरफोर्स का एक एजेंडा था। ये आयोनोस्फीयर्स दरअसल सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और रेडियो वेव्स का मरकज होता है। HAARP was designed to control the weather, weaponized to cause disruption and destruction to unaware targets. Using a 1 megawatt generator, scientists sent radio pulses every 7.5 seconds towards the ionosphere from the HAARP mega array of antennas, which covered acres of land. These radio waves travelled 30 miles up, hitting the ionosphere, which resulted in a modest neon light show visible from the ground. Natural aurora happens when electrons from a cloud of hot gas, known as plasma, rains down from space and excites the molecules. This experiment was to improve understanding of the aurora and help explain how the ionosphere adversely affects radio communications. अमेरिकन अवाम को ये बताया गया कि इस हार्प के ज़रिए हम ये स्टडी कर रहे हैं कि आयोनोस्फीयर्स के अंदर किस तरह जीपीएस यानी नेविगेशन सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि इस हार्प टेक्नोलॉजी के ज़रिए रेडियो वेव्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशंस पर असरअंदाज होने वाले उन चीज़ों को भी स्टडी किया जाएगा जिनसे इनके अंदर बेहतरी लाई जा सकती है। इसी हार्प के ज़रिए ज़मीन और फ़ज़ा के अंदर होने वाली तब्दीलियों की स्टडीज़ प्लस ज़मीन और फ़ज़ा के ताल्लुकात को समझना और आयोनोस्फीयर्स के अंदर होने वाली जो तब्दीलियां हैं उसके ऊपर क्या चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं इसको भी स्टडी करना था। ये सारी बातें 1993 के एंड की हैं और 1994 के शुरू में ये बातें दुनिया के सामने या ख़ास तौर पे अमेरिकन अवाम के सामने आना शुरू हुई। मगर हकीकत ये थी कि 1993 के बाद ये हार्प टेक्नोलॉजी अपने एडवांस फेज में दाखिल हो चुकी थी। Now technically, HAARP is the world's most capable, high-power, high-frequency transmitter for study of the ionosphere. The principal instrument is the Ionospheric Research Instrument, the IRI. This consists of 180 HF cross dipole antennas spread across 33 acres. The IRI is capable of radiating a massive 3.6 megawatts into the upper atmosphere and ionosphere. The transmit-capable frequencies are selectable in the range of 2.7 MHz up to 10 MHz. Since the antennas form a sophisticated phased array, the transmitted beam can take many shapes over a wide angle range. This also results in multiple beams being formed. As well as HAARP using active antennas and transmitters, it's also capable of passive reception, which is used to only monitor or listen. This must be the best receiving station on the planet. HAARP radio waves heat electrons in the ionosphere, anywhere from 60 to 80 kilometers altitude, but this can also extend as far as 500 kilometers altitude. Now this creates small perturbations that are similar to the kinds of interactions that happen in nature. With HAARP, scientists can control when and where these perturbations occur, so they can measure their effects. Now with all that said, what do you think about HAARP? Have you ever heard it on air transmitting? Well, if you haven't, here's a clip of what it sounds like. क्योंकि जिस वक्त लोगों के सामने ये बातें आना शुरू हुई थी तो उस वक्त तक ये 4 काम कर चुके थे और वो 4 काम ये थे। नंबर 1,
मौसम को कंट्रोल करना, यानी बारिश, सर्दी, गर्मी, इन तीनों को अपने हिसाब से कम और ज़्यादा करना किसी भी दुनिया के खित्ते के अंदर, किसी भी कोने में जाके। और इसकी मैं आपको एक मिसाल दूंगा। इस हार्प टेक्नोलॉजी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना जो कि ज़लज़ले और तूफ़ानों के क्रिएशन का बाइस बनता है, यानी साइक्लोन्स उससे बन जाते हैं और उसके ज़रिए अपने मखसूस इलाकों को टारगेट करके तबाह बर्बाद किया जाता है, यानी वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को। और तीसरा काम इसका था कि किसी भी मुल्क जो कि इनके मफादात के ख़िलाफ़ जाए या दुश्मन मुल्क हो, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना और इसके कम्युनिकेशन के निज़ाम को मफलूज बनाना या नाकारा बनाना, ये भी इनका टारगेट था। और एज अ वेपन के तौर पे ये हार्प टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाना था। और चौथा काम ये पूरी दुनिया के लोगों के साथ था कि इस हार्प टेक्नोलॉजी के ज़रिए हर इंसान का दिमाग जो इंसानी वेव से डिस्टर्ब होने लगता है, उसके अंदर की केमिकल चेंजेस आने लगती हैं, इस हार्प के ज़रिए इंसानी दिमाग पर असरअंदाज होना उन वेव्स के ज़रिए जो बज़ाहिर दिखाई नहीं देती। ये 4 काम 1993 तक ये लोग कर चुके थे और उसकी मिसाल मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर, जिसका लिंक यहाँ पर है, एक अमेरिकन अखबार की ही कटिंग मैंने लगाई थी, वो आप देख सकते हैं। तो ये ऐसा हुआ था। HAARP has also been blamed for causing the 7 magnitude Haitian earthquake of 2010, which was reported to have killed more than 220,000 people. Other natural disasters such as the 2011 earthquake and tsunami in Japan, the Moore, Oklahoma tornado of 2013, and a landslide in 2006 in the Philippines have all been reported as a result of HAARP use. That HAARP was designed to control people's minds, along with altering the very fabric of reality. So what sparked all these conspiracy theories regarding HAARP? Maybe it was the experiment scientists were performing back in March 2004. अवाम के अंदर क्योंकि ये बात जंगल के आग की तरह फैलना शुरू हो गई थी, तो उन्होंने किया ये कि वहाँ पर ये साबित किया कि ऐसा कुछ नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा अमेरिकन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है। और इस बात को झूठा साबित करने के लिए अपने ही लोगों को रास्ते से हटाया और इसके अलावा उन्होंने प्रिंट मीडिया और पेपर मीडिया और न्यूज़ चैनल्स का सहारा लेकर ये साबित किया कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये असल में हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर बहुत सारे लोग जो कि ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट्स के साथ वाबस्ता थे और इस पे काम कर रहे थे, उन्होंने इसके बहुत सारे पोर्शंस खोले, मगर साजिशी थ्योरी का या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का इसका हिस्सा इन अमेरिकन गवर्नमेंट ने और ज़ायनिस्ट ने दबा के इस्तेमाल करा और कहा कि नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सब झूठ पर मबनी है। ये तमाम रिसर्च दरअसल अमेरिका की एक रियासत जो कि अमेरिका के बिल्कुल कोने की थी, यानी अलास्का, जहाँ पर जाना और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना बहुत मुश्किल काम था। ये वो रियासत है जहाँ पे आबादी तकरीबन ना होने के बराबर है और वहाँ पे कोई भी गैर मुकामी बंदा कर जाए तो फ़ौरन नज़रों में आ जाता था। मगर जिस वक्त अवामी दबाव 1994 में बढ़ा तो उन्होंने, यानी कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये तमाम प्रोजेक्ट, ये तमाम स्टडीज़ जो कुछ भी हो रही है, ये तमाम की तमाम यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का कर रही है और यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का को सुपरवाइज करने वाली अमेरिकन एयर फोर्स है, उसके अंडर सुपरविज़न ये तमाम की तमाम स्टडीज़ चल रही हैं। गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं है, गवर्नमेंट ने अपने हाथ खड़े कर दिए। और ये वही दौर था जिस वक्त न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बेइंतहा तेज़ी से ऊपर की तरफ आ रहा था। और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर NWO जो ब्लैक बैकग्राउंड के साथ था, अगर आपको याद हो, जो कि इस वक्त 70s और 80s के पैदाइश के लोग हैं, उनको ये यकीनन याद होगा क्योंकि वो उस वक्त स्कूल और कॉलेज के ज़माने में होंगे। तो उस वक्त न्यू वर्ल्ड ऑर्डर असल में उसका एक टूल यही हार्प टेक्नोलॉजी था, जिसके ज़रिए दुनिया की बहुत सारी गवर्नमेंट्स की एलीट क्लास को ये बता दिया गया था कि अपनी औकात में रहो, क्योंकि अब हम तुम्हारे साथ ये भी कर सकते हैं, तो इसलिए बेहतर है, जैसा हम कह रहे हैं, दुनिया को वन वर्ल्ड वन ऑर्डर के एजेंडे के तहत लेकर आना था। हार्प की यही रिसर्च आगे चलते चलते क्लाइमेट चेंज यानी कि माहौलियाती तब्दीलियों को भी कवर करने लगी।
और आने वाले वक्तों में यही क्लाइमेट चेंज ज़ायनिस्ट का एक ऐसा टूल बन गया जिसके ज़रिए उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की और अपने इस पॉलिसी टूल के ज़रिए अपने मनपसंद मफादात दुनिया के हर कोने से इन्होंने हासिल किए। अब सवाल ये उठता है कि क्या हार्प टेक्नोलॉजी से किसी भी मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा सकता है, जो कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से जाके जुड़ा हुआ है? इस सवाल के जवाब के दो ज़ाविये हैं। मैं ये दोनों आप लोगों के सामने रख देता हूँ। इन दोनों ज़ावियों में से जो आपको चूज़ करना हो वो आप चूज़ कर लीजिए। पहला है साइंटिफिक बयान या पब्लिकली बयानात, और दूसरा है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का बयान, जिसे जिद्दत पसंद और मगरिब पसंद लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हैं। ये दोनों एंगल्स यानी ज़ाविये में आपके सामने रख रहा हूँ, इसमें से आपको जो पसंद है आप वो रख लीजिए। पहला एंगल जो साइंटिफिकली और पब्लिकली है वो बयान मैं आपके सामने रखता हूँ, और वो ये है कि क्लाइमेट चेंज दरअसल एक साइंसी हकीकत है जो कि दर्जा हरारत बढ़ा रही है, बर्फ़ पिघला रही है, तूफ़ान ला रही है, बारिशें बढ़ रही हैं और ज़्यादा शिद्दत के साथ हो रही हैं। समंदरी तूफ़ान साइक्लोन्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इसकी वजह है ग्रीन हाउसेस गैसेस CO2 और CH4, और ये इंसानी गलतियां भी हैं और कुदरती आफात भी हैं। और इंसानी गलतियों से मुराद है कि आम आवाम जो गलतियां कर रही है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है। मिसाल अगर ले लेते हैं तो उसमें इंडस्ट्रियल समझ लें कि जो फुजला वगैरह जैसे है, या जो धुआं छोड़ा जा रहा है, या जो हम गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें चला रहे हैं, इसके धुएं की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। ये आवाम की गलती है, हमारी गलती नहीं है। यानी आम लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं, जबकि इसका दूसरा ज़ाविया वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, और वो ये है कि आम इंसान इस मामले में कुछ भी नहीं कर रहा, उसकी गलती नहीं है, बल्कि ये एक इंसानी इंजीनियरिंग है जो कि ऊपर की सतह पर यानी एलीट क्लास की सतह पर या गवर्नमेंट लेवल पर या जितनी भी दुनिया की फ़ौजी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी सतह पर ये इंजीनियरिंग की जा रही है ताकि दुनिया की मईशत को कमज़ोर किया जा सके और उसको ग्रिप किया जा सके। और ये उन तमाम हिडन टेक्नोलॉजीज़ में से एक हार्प है जो कि इस मौसम को कंट्रोल करता है, किसी भी मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करता है, सैलाब लेकर आता है, तूफ़ान बनाता है, सर्दी गर्मी कम ज़्यादा करता है, ग्लेशियर्स पिघला देता है, और इसके अलावा वहाँ के यानी मुकामी जगह के बिजली के निज़ाम को भी तबाह बर्बाद कर देता है। यानी कि वहाँ की जो बिजली की सप्लाई होती है उसके भी निज़ाम को दरहम भरम करता है। लकड़ी लेकर के जा रहे हैं, मगर इतनी लकड़ी सोचा जाए तो काटी कहाँ से जाती है? इतनी लकड़ी आप लवास से देखना, अगर अभी इन दिनों आपको चक्कर लगता है नीलम, तो लवास से लेकर टोंडरशाही बाजार से यहाँ तक मुसरी डैम तक आपको इसे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का हिस्सा करार देते हैं उस मुल्क के वो जिद्दत पसंद लोग जो इस बात को समझना नहीं चाहते हैं और इस मामले पे कोई रिसर्च नहीं करना चाहते, क्योंकि एक बहुत बड़ी फंडिंग्स इन तमाम मामले में उनके पीछे इनडायरेक्ट वे से मिल रही होती है, उनको आ रही होती है। तो इसलिए इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का हिस्सा रखा जाता है। ये है वो दूसरा एंगल। उस मामले में ज़ायनिस्ट जब भी किसी मुल्क को टारगेट करते हैं जिनसे उन्हें कोई ना कोई मफाद लेना होता है, वो मफाद किसी भी किस्म का हो सकता है, किसी भी किस्म का। उसमें अफरादी ताकत से लेके वहाँ के वसाइल, कुदरती वसाइल, कुछ भी उनको चाहिए होता है। तो उस मुल्क को वो करते क्या हैं कि कर्ज़े दे के उस मुल्क के सियासतदानों को और ऊपर की एलीट क्लास को अपने साथ जगड़ते हैं और वहाँ पे पैसे दे के, कर्ज़े दे के अपनी मर्ज़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। हाईवेज़ हों, रोड्स हों, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि तालीम और मेडिकल से हट के हों, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो वहाँ पे वो पैसा लगवाना शुरू करते हैं।
और उसके पैसे की वजह से वो मुल्क कर्जदार हो जाता है, तो वो हुक हो जाता है। वो मुल्क ज़ायनिस्ट के इस हुक किए गए मामले में क्योंकि कर्जा लेके कमज़ोर हो चुका होता है, फंस चुका होता है, और वहाँ के जो मुकामी सियासतदान होते हैं वो ऑलरेडी उस पैसे को जो उन्होंने उनसे लिया होता है उसका ऊँट के मुँह में जीरे के नाम पर उस मुल्क में लगा के वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, और बाकी तमाम रकम हड़प करके वो तमाम रकम वापस अपने ही अकाउंट्स में जो कि गैर मुल्क के अंदर होते हैं और उन्हीं के मुल्कों में होते हैं वहाँ पर वापस भेज देते हैं। तो होता ये कि ये तमाम पैसा घूम के वापस उनके पास चला जाता है और वो मुल्क कर्जे में फंस जाता है। वो पॉलिटिशियंस जो कि इस सारे मामले में फंस चुके होते हैं वो फिर इस हुक किए गए निज़ाम के अंदर फिर उनकी पॉलिसी को फॉलो करते हैं, और इसका अगला स्टेप होता है कि क्लाइमेट चेंज के नाम पर उसी मुल्क को मज़ीद कर्जा दिया जाता है ताकि ग्रीन हाउस पॉलिसीज़ का दबाव डाला जा सके। उस मुल्क को ग्रीन पॉलिसीज़ का जिस वक्त कर्जा दे दिया जाता है उसके बाद उस मुल्क के अंदर दबा के क्लाइमेट चेंज का प्रोपेगेंडा मचाया जाता है, और इस क्लाइमेट चेंज को इतना ज़्यादा लोगों के दिमाग में बिठा दिया जाता है कि उनके सबकॉन्शियस के अंदर भी क्लाइमेट चेंज। फिर होता ये है कि उस मुल्क के अगर उनको मफादात नहीं मिलते हैं जो वो चाहते हैं और उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई रेजिस्ट आ रही होती है, तो वहाँ पर फिर अपनी पॉलिसीज़ को एक ग्रेड और बढ़ाया जाता है और वहाँ पर इस हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम बातें मैं नहीं कर रहा बल्कि उस एंगल का सेकंड पार्ट है जिसको मैंने कहा कि वो हाइब्रिड या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंदर वो लेकर आते हैं, यानी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिसको जिद्दत पसंद कहते हैं कि ये होता ही नहीं है। और उसकी मिसाल जापान था। जापान के अंदर जिस वक्त ज़लज़ले आए थे वो इसी हार्प टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा था, जिसके अंदर जापान का एटॉमिक पावर प्लांट को तबाह करना था, और वो हुआ। मुझे वो ईयर याद नहीं है, वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा कि वो कौन सा ईयर था, और वो न्यूज़ भी लगा दूंगा। Talking about how he had gone to Japan to confront Hazel Takanaka, the former Japanese finance minister, on why he had turned over the Japanese financial system to European and American oligarchs. And the answer that Benjamin Fulford got was that it was because Japan had been threatened that if they didn't, they would be hit with an earthquake machine, an earthquake weapon. So we're back to the HARP thing again. And many other things, including the behavior of domestic animals. Such programs are being worked out all over the world, including those we're developing.
In particular, we continued our work, followed an instruction by the Russian Security Council in 2006. Since then, we've been working following our own initiative, which is also partially financed by the Russian Space Agency. As a result, we've established a network of stations in the Russian Far East to monitor the ionosphere and predict earthquakes. In particular, this devastating earthquake in Japan, which we're now witnessing, was peaking already as the foreshocks had begun on the 8th of March, with magnitudes of 7.2. So we see the shocks following one another, all of them with magnitudes greater than 5, the latest one being nearly 9. This is indeed a disaster. However, we can say that 7 hours prior to the quake in Tokyo, we could see the precursor, a change in the disturbance concentration in the ionosphere over Japan. And during this huge earthquake off Japan, the green dot you're looking at behind me was the location of a magnitude 7.2 earthquake that occurred on Wednesday morning, local time, off the coast of Japan. Itself a fairly substantial earthquake. That earthquake was followed by a set of smaller earthquakes, aftershocks, and those aftershocks, if we had just seen this sequence, we would have said, oh, it's just a normal main shock aftershock sequence, but boom, about 50 hours later, there was the main shock, which is shown on this map as the red dot, and then a whole swarm of aftershocks that followed the main shock. And what you're seeing here is how those aftershocks happened over a period of about a week after the main shock. And that The white tsunami waves moving extremely rapidly upstream. Ibaraki Airport building fell. You're seeing a fire that is completely raging out of control. Oil refinery up in blaze. And it looks like the tsunami has engulfed several cities in Miyagi Prefecture. Here, a boat in a harbour finds itself tossed about in a whirlpool created by the earthquake. Someone inside that building waving a white towel seeking help. तो इस तरह इस मुल्क के ऊपर उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के बाद, मामला ख़राब करने के बाद कब्ज़ा कर लिया जाता है और इसके मेन क्रिमिनल्स होते हैं ऊपर की एलीट क्लास। इस सेकंड फेज़ के अंदर होता ये है फिर हार्ड टेक्नोलॉजी के ज़रिए वह उन मुल्कों के अंदर सैलाब लाए जाते हैं, लैंड स्लाइडिंग्स होती हैं, बारिशें बढ़ जाती हैं या खुशहाली हो जाती है या वहाँ पे खुराक की किल्लत पैदा कर दी जाती है। सड़कें, खेत खलियान, खुराक, हज़ारों की तादाद में मौतें, ये सारा कुछ इसी क्लाइमेट चेंज के ज़ुमरे में आ जाता है। बारिशें ज़्यादा होने की वजह से अगर डैम्स ख़राब हो जाते हैं या तबाह हो जाते हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम पड़ती है फिर मवासलाती निज़ाम के ऊपर, और जो इलेक्ट्रिक की जो सप्लाई होती है तमाम मुल्क के अंदर, उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है और उसकी वजह से फिर दीगर चीज़ें वहाँ पे प्रॉब्लम होती हैं। यही नहीं बल्कि माशी हब वाले जो सिटीज़ हैं उनके अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही फिरती है, जिसकी वजह से वो मुल्क जिस शहर से कमा रहा होता है उस शहर या उस जैसे शहर उस मुल्क के वो फाइनेंस क्रिएट नहीं करते उस मुल्क की मईशत को चलाने के लिए, तो मज़ीद एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के बाद, खाने पीने की किल्लत के बाद, बहुत सारी चीज़ें जो उस मुल्क की तबाह हो जाती हैं, तो उस वक्त दोबारा एंट्री होती है IMF और वर्ल्ड बैंक की, क्योंकि मुल्क की मईशत का बट्टा वैसे ही बैठा हुआ होता है, तो उस मुल्क की एलीट क्लास इनसे दोबारा मज़ीद कर्जा लेती है और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की कोशिश करती है और ख़ुराक का भी बंदोबस्त करती है, मगर फिर एक बड़ी करप्शन वहीं पर होती है और ये पैसे फिर घूम के इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स में चले जाते हैं। वो टारगेटेड मुल्क जिससे वो ज़ायनिस्ट या वो बड़े ममालिक जो कि अपने मफाद चाहते हैं, उस मुल्क के ऊपर इस कर्ज़े के ज़रिए, इस तबाही के ज़रिए मज़ीद दबाव डालते हैं और
इस मज़ीद जकड़ने की वजह से वहाँ से वो अपने मफादात हासिल कर लेते हैं। वहाँ की एलीट क्लास या सियासतदानों के ऊपर या सियासतदानों के पास या सियासतदानों से ऊपर जो भी लोग होते हैं उनके अकाउंट्स में पैसे आ जाते हैं। वो पैसे घूम के फिर इंटरनेशनल अकाउंट्स में चले जाते हैं, जिसमें से नंबर 1 स्विट्ज़रलैंड है। ये स्विट्ज़रलैंड के अंदर बैंकिंग सिस्टम क्या है ये मैं किसी और वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊँगा, मगर ये सारे पैसे वहाँ जाते हैं और उस मुल्क पर ना दिखने वाला एक कब्ज़ा हो जाता है। और ये कब्ज़ा ऐसा होता है जो वहाँ के अवाम को समझ में नहीं आता, और वहाँ की जितनी भी मीडिया होती है या जो भी ज़राए इब्लाग होते हैं वो सारे कंप्रोमाइज़ होते हैं। इवन के उनकी दीनी जमातें भी किस तरह, वो फिर कभी आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह बताऊँगा। अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ साथ इसी से जुड़ी हुई मैं और ख़बरें अगली वीडियो में इंशाल्लाह लेकर आऊँगा, क्योंकि तारीख़ के ये वो छुपे हुए पहलू हैं जो कि साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के कुछ मामलात हैं। मैंने इसमें अपनी कोई राय नहीं दी, ये मैंने एज इट इज़ मार्केट में जो चीज़ें हैं वो मैंने आपके रख दी हैं। अक़ल और शऊर आपका जो फ़ैसला करता है वो आप इन दोनों एंगल्स में से जो एंगल लेना चाहे वो आप ले लें। मगर अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।